ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ انسانوں کو کیوں پیدا کرتے ہو، پھر انہیں کیوں مار دیتے ہو؟ اللہ کا جواب سن کر سب حیران رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو؟ یعنی کہ ان کو موت کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا، اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفاتیں عطا فرمائی جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو، ان میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کاٹ کیوں ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کھیتی کے پکنے پر اس میں دانا اور بھوسا تھا اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا الہی، میری یہ دانشمندی اور یہ عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر یہ دانشمندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ، دیکھو، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہے، ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے، اور ہر انسان کے جسم ایک رتبے کے نہیں ہوتے۔ کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہے تو کسی کے جسم میں کنچ کی پونچھ طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا ہے تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ کو چلی جائے۔ اے موسیٰ، یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہمارے صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، ہمارے لیے بھی یہ حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفاتیں رکھی ہیں اور ڈھیروں وجوہات ہیں جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ سے کوئی بات سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں، اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب،
तेरे बंदों में सबसे ज्यादा मुत्तकी यानी डरने वाला और परहेजगार कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो अल्लाह का जिक्र करता रहे और उसे भूले नहीं। यकीनन अल्लाह से डरने वाला वही शख्स होता है जो सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर भी अल्लाह को याद रखे, यानी आम मामलात, खुशी और गम में भी अल्लाह को ना भूले बल्कि हर कदम अल्लाह की रजा के मुताबिक ही उठे। दूसरा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा सही रास्ते पर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो हिदायत के रास्ते पर चले। अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजकर और कुरान पाक जैसी किताब को उतार कर हिदायत के रास्ते को साफ साफ दिखा दिया। इसीलिए हम सभी को कुरान और हदीस का झंडा लेकर हिदायत के रास्ते पर चलना चाहिए। तीसरा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा जानने वाला आलिम कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आलिम वो है जिसका पेट इल्म से नहीं भरता, जिसके अंदर इल्म की प्यास कभी ना बुझे, बल्कि वो हर दिन नई चीजों को सीखने की कोशिश करे और मरते दम तक सीखता रहे। यही आलिम है, ना कि वो जिसने इल्म सीखा फिर सीखने और सिखाने से उसका कोई ताल्लुक नहीं। चौथा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा अच्छा फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो लोगों को वही हुक्म देता है जो अपने आप को देता है, वो काम जो किसी ने ना किया हो और दूसरों को उसके करने का मशवरा देता हो, ऐसा आदमी सही फैसला नहीं दे सकता। पांचवा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे अल्लाह, तेरे तमाम बंदों में सबसे ज्यादा अजीज तरीन बंदा कौन सा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो बदला लेने की ताकत रखता हो लेकिन फिर भी बदला ना ले और सामने वाले को माफ कर दे, ऐसा वही कर सकता है जिसके अंदर सब्र और बर्दाश्त की ताकत हो। क्योंकि जब कोई आपको तकलीफ पहुंचाए तो बदले में आप भी उसे तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन बदला लेने की बजाय जो माफ कर दे, ऐसा शख्स अल्लाह का सबसे अजीज बंदा है। छठा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा गनी कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसको जितना मिले उस पर राजी रहे। गरीब वो है जिसके पास दौलत हो फिर भी उस पर राजी ना हो, दिन रात उसी की तलब में मारा मारा फिरे। और बेनियाज वो शख्स है जिसको जितनी नेमतें मिले उसी पर खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सातवां सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, आपके बंदों में सबसे ज्यादा फकीर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मुसाफिर हो, एक मुसाफिर यानी सफर करने वाला हाजतमंद और जरूरतमंद हो सकता है। वैसे तो आजकल के सफर चंद घंटों और दिनों के होते हैं, इसीलिए आसानी होती है, लेकिन फिर भी सफर में मुश्किलात बहुत सामने आती है। इसीलिए अगर कोई मुसाफिर जरूरतमंद हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह, तूने इंसान को पैदा किया, इसे आकिल, दिल और जिंदगी अता की, फिर आखिर उसे मौत क्यों देता है? इसमें तेरी क्या हिकमत है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम कुल सुबह वादी में जाओ, वहां तुम्हें एक मंजर दिखाऊंगा जिससे तुम्हें मेरी हिकमत समझ में आ जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हस्बे फरमान सुबह सवेरे वादी की तरफ गए। उन्होंने देखा कि एक हरी भरी घास के धूमा में एक नौजायदा हिरनी अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। थोड़ी देर बाद एक शेर आया और इसने उस बच्चे को शिकार कर लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया और उन्होंने कहा, ए परवरदिगार, ये नन्हा सा बच्चा किस जुर्म में मारा गया? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अभी सब्र करो, देखो आगे क्या होता है। कुछ देर बाद वही शेर एक शिकारी के तीर से जख्मी होकर मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, या रब, ये कैसा निजाम है? अभी तो शेर जीता था, अब वो भी मर गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अब देखो आखिर में क्या होता है। थोड़ी देर में वही शिकारी एक पहाड़ी से नीचे गिरा और खुद भी मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुमने जो हिरनी के बच्चे को देखा था, वो बच्चा पिछले जन्म में जालिम था। उसने उस शिकारी के वालिद को नाहक कत्ल किया था। मैंने उस बच्चे की रूह को दुनिया में भेजा ताकि उसके गुनाह का बदला दूं। फिर मैंने शेर को उस बच्चे पर मुसल्लत किया ताकि इंसाफ हो जाए। फिर शेर को मारने वाले शिकारी को भी मौत दी ताकि मैं उसे भी उसके आमाल के बदले जजा दूं। ए मूसा, मेरा हर फैसला अदल पर मबनी है।
मौत मेरे निजाम इंसाफ का हिस्सा है, जुल्म का खात्मा और अदल का आगाज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अर्ज किया, या रब तू पाक है, तेरी हर तकदीर में हिकमत है। हम जाहिरी आंखों से देखकर फैसला करते हैं, मगर तेरी तदबीर वही जानता है जो बातिन को समझता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, इसीलिए मैंने मौत को जिंदगी के बाद रखा, ताकि हर एक को उसके ऐमाल के मुताबिक बदला दूं। मौत ना जुल्म है ना इंतकाम, बल्कि अदल की इब्तिदा है। ये वाकया हमें सिखाता है कि इंसान दुनिया की जाहिरी जिंदगी को सब कुछ समझता है, मगर अल्लाह ताला के नजदीक असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है, जहां हर अमल का हिसाब और हर हक का बदला दिया जाता है। एक दिन एक नेक बुजुर्ग अपने शागिर्दों के साथ कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। शागिर्दों में से एक ने सवाल किया, हजरत, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, फिर आखिर मौत क्यों देता है? अगर जिंदगी ही मकसद थी तो हमेशा के लिए जिंदा रख देता। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, बेटा, आओ मैं तुम्हें एक मिसाल से समझाता हूं। वो सब एक कारीगर के पास गए जो मिट्टी के बर्तन बना रहा था। बुजुर्ग ने शागिर्द से कहा, देखो ये मिट्टी के ढेर को। उस कारीगर ने इससे खूबसूरत बर्तन बनाए। अब अगर कोई बर्तन टूट जाए तो क्या ये नुकसान है या फायदा? शागिर्द ने कहा, अगर बर्तन बेकार हो जाए तो कारीगर उसे तोड़कर नई मिट्टी बनाता है ताकि कुछ बेहतर बना सके। बुजुर्ग ने फरमाया, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। दुनिया उसके लिए एक भट्टी है जहां उसे तपाया जाता है, आजमाया जाता है, संवारा जाता है। जब वो मुकम्मल हो जाता है तो अल्लाह ताला उसे इस दुनिया से ले जाता है ताकि उसे अबदी जिंदगी मिले, जहां ना मौत है ना दुख। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह मौत को फना नहीं बनाता बल्कि एक दरवाजा बनाता है दुनिया से अबदियत की तरफ। मौत दरअसल पैदा होने का अमल दूसरा हो रहा है। शागिर्द की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हजरत, तो गोया मौत खत्मी अंजाम नहीं बल्कि असल जिंदगी की शुरुआत है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, हाँ बेटा, इसीलिए मोमिन मौत से नहीं डरता बल्कि उसका इस्तिकबाल करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके रब ने उसके लिए एक बेहतर घर तैयार किया है। फिर उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, वही है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया है, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से कलाम करने पहाड़ पर जाते थे। एक औरत जो कि बे औलाद थी, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि अब जब खुदा से कलाम करने जाएं तो पूछना कि मेरी औलाद कब होगी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से कलाम करने पहाड़ पर तशरीफ ले गए तो उन्होंने अल्लाह से कहा कि फला औरत ने मुझसे यह सवाल करने को कहा था कि उसकी औलाद कब होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके नसीब में औलाद नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सारी बात आकर उस औरत को बता दी। वो औरत यह सुनकर मायूस हो गई। कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन उस औरत के घर के पास से एक फकीर गुजरा। उसने सदा लगाई कि जो मुझे एक रोटी देगा मैं उसके लिए नेक औलाद के लिए दुआ करूंगा। जब यह सदा इस औरत ने सुनी तो फौरन एक रोटी इस फकीर को दे दी। फकीर ने इस औरत के लिए नेक औलाद के लिए दुआ की और चला गया। अल्लाह के फजल और रहमत से और इस फकीर की दुआ के बाद इस औरत के यहाँ औलाद हुई। वो औरत बहुत खुश हुई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस औरत के घर के सामने से गुजरे तो उन्होंने जश्न की वजह दरियाफ्त की। इस औरत ने बताया कि अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा है। आप अलैहिस्सलाम ने तो कहा था कि मेरे यहाँ औलाद कभी नहीं होगी, मगर अल्लाह ने एक फकीर की दुआ से मुझे औलाद से नवाज दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए और कहा कि ए अल्लाह, ये क्या माजरा है? तूने तो फरमाया था कि इस औरत की कभी औलाद नहीं होगी। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, पहले तो जाकर हलाल गोश्त का एक टुकड़ा ले आ, फिर मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत तलाश किया मगर कहीं से भी हलाल गोश्त का टुकड़ा नहीं मिला। वो वापस अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए और कहा कि ए अल्लाह, मुझे कहीं से भी हलाल गोश्त का टुकड़ा नहीं मिला। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के गोश्त का टुकड़ा ले आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये तो एक और मुश्किल काम है, मगर अल्लाह का हुक्म था इसलिए निकल पड़े। बहुत तलाश करने के बाद भी कहीं से इंसान के गोश्त का टुकड़ा ना मिला।
वो तलाश करते करते एक जंगल में पहुंच गए। इस जंगल में वही फकीर बैठा था जिसने इस औरत के लिए दुआ की थी। इस फकीर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी परेशानी की वजह दरियाफ्त की तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा माजरा बयान कर दिया। ये माजरा सुनकर इस फकीर ने बोला कि सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए, कोई चाकू है आपके पास? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चाकू निकाल कर दे दिया। चाकू लेकर इस फकीर ने अपने जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काटकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाने ही लगे थे कि फकीर ने उन्हें पुकारा और कहा कि रुक जाओ, पता नहीं अल्लाह ताला ने कौन से हिस्से का गोश्त मंगवाया हो, मैं जिस्म के हर हिस्से से गोश्त का टुकड़ा काट कर देता हूं। इस फकीर ने अपने हाथ से, कान्हे से, पीठ से और जिस्म के हर हिस्से से गोश्त का टुकड़ा काट कर दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए और कहा कि मैं गोश्त के टुकड़े ले आया हूं। अल्लाह ने फरमाया, किसके गोश्त के टुकड़े हैं? इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी बात बयान कर दी और कहा कि फला जंगल में मुझे एक फकीर मिला था, इसी के जिस्म के गोश्त के टुकड़े हैं। तब अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, इस बंदे ने तेरे कहने पर मेरे लिए अपने जिस्म से गोश्त के टुकड़े काट कर दे दिए, तो क्या मैं इसके कहने पर इस औरत को औलाद नहीं दे सकता था? ए मूसा, गोश्त तो तेरे जिस्म पर भी था और इस औरत के लिए दुआ भी कर सकता था, मगर तूने नहीं की। इस फकीर ने सच्चे दिल से दुआ की और मैंने कबूल कर ली। बेशक खुदा अपने नेक बंदों को अजीज रखता है। तमाम पैगंबर की निस्बत कुरान में हजरत मूसा का वाकया ज्यादा आया है। 30 से ज्यादा सूरतों में मूसा और फिरौन और बनी इसराइल के वाकया की तरफ 100 मरतबा से ज्यादा इशारा हुआ है। अगर हम इन आयतों की अलग अलग शरह करें, आज के बाद इन सब को एक दूसरे के साथ मिला दें, तो बाज अफराद की इस तोहम के बरखलाफ कि कुरान में तकरार से काम लिया गया है, हमको मालूम होगा कि कुरान में ना सिर्फ तकरार नहीं है बल्कि हर सूरा में जो बहस छिड़ी गई है इसकी मुनासबत से इस सरगुज़िश्त का एक हिस्सा शाहिद के तौर पर पेश किया गया है। ज़मनन ये बात भी जहन में रखना चाहिए कि इस जमाने में ममलिकत मिस्र निस्बतन वसी ममलिकत थी। वहां के रहने वालों का तमद्दुन भी हजरत नूह, हूद और शुएब अलैहिमुस्सलाम की अक़वाम से ज्यादा तरक्की याफ्ता था, लिहाजा हुकूमत फ़राइना की मुकावमत भी ज्यादा थी। इसी बिना पर हजरत मूसा की तहरीक और नहज़त भी इतनी अहमियत की हामिल हुई कि इसमें बहुत ज्यादा इबरत अंगेज निकात पाए जाते हैं। बना बरे इस कुरान में हजरत मूसा की जिंदगी और बनी इसराइल के हालात के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। कुल्ली तौर पर इस अजीम पैगंबर की जिंदगी को 5 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 5 अदवार। नंबर 1, पैदाइश से लेकर आगोश फिरौन में आपकी परवरिश तक का जमाना। नंबर 2, मिस्र से आपका निकलना और शहर मदियन में हजरत शुएब के पास कुछ दक्कत गुजारना। नंबर 3, आपकी बेसत का जमाना और फिरौन और उसकी हुकूमत वालों से आपके मुताद्दिद तनाज़े। नंबर 4, फिरौनियों के चुंगल से मूसा और बनी इसराइल की निजात और वो हवादिस जो रास्ता में और बैतुल मुकद्दस पहुंचने पर रोनमा हुए। नंबर 5, हजरत मूसा और बनी इसराइल के दरमियान कशमकश का जमाना। विलादत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हुकूमत फिरौन ने बनी इसराइल के यहाँ जो नौमौलूद बेटे होते थे उन्हें कत्ल करने का एक वसी प्रोग्राम बनाया था। यहाँ तक कि फिरौन की मुकर्रर करदा दायां बनी इसराइल की बारदार औरतों की निगरानी करती थीं। उन दाइयों में से एक वालिदा मूसा की दोस्त बन गई थी। शक्म मादर में मूसा का हमल मख्फी रहा और उसके आसार जाहिर न हुए। जिस वक्त मादर मूसा को यह एहसास हुआ कि बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, तो आपने किसी के जरिया अपनी दोस्त दाई को बुलाने भेजा। जब वो आ गई तो उससे कहा, मेरे पेट में एक फर्जंद है, आज मुझे तुम्हारी दोस्ती और मोहब्बत की जरूरत है। जिस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो आपकी आंखों में एक खास नूर चमक रहा था। चुनाचे उसे देखकर वो दाया कांपने लगी और उसके दिल की खराई में मोहब्बत की एक बिजली समा गई जिसने उसके दिल की तमाम फजा को रोशन कर दिया। ये देखकर वो दाया मादर मूसा से मुखातिब होकर बोली कि मेरा यह ख्याल था कि हुकूमत के दफ्तर में जाके इस बच्चे के पैदा होने की खबर दूं ताकि जल्लाद आए और उसे कत्ल कर दें और मैं अपना इनाम पालूं, मगर मैं क्या करूं कि मैं अपने दिल में इस नौजायदा बच्चे की शदीद मोहब्बत का एहसास करती हूं। यहां तक कि मैं ये नहीं चाहती कि उसका बाल भी बेका हो। उसकी अच्छी तरह हिफाजत करो। मेरा ख्याल है कि आखिरकार ये हमारा दुश्मन होगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तनूर में वो दाया मादर मूसा के घर से बाहर निकली तो हुकूमत के बाज जासूसों ने उसे देख लिया।
उन्होंने तय कर लिया कि वो घर में दाखिल हो जाएंगे। मूसा की बहन ने अपनी माँ को इस खतरे से आगाह कर दिया। माँ ये सुन के घबरा गई। उसकी समझ में ना आता था कि अब क्या करे। इस शदीद परेशानी के आलम में जबकि वो बिल्कुल हवास बाख्ता हो रही थी, उसने बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और तन्नूर में डाल दिया। उस दौरान में हुकूमत के आदमी आ गए, मगर वहां उन्होंने रोशन तन्नूर के सिवा कुछ न देखा। उन्होंने मादर मूसा से तफ्तीश शुरू कर दी। पूछा, दाया यहां क्या कर रही थी? मूसा की मां ने कहा कि वो मेरी सहेली है, मुझसे मिलने आई थी। हुकूमत के कारंदे मायूस होकर वापस हो गए। अब मूसा की मां को होश आया। आपने अपनी बेटी से पूछा कि बच्चा कहां है। उसने लाइल्मी का इजहार किया। नागहा तन्नूर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। अब मां तन्नूर की तरफ दौड़ी। क्या देखती है कि खुदा ने उसके लिए आतिश तन्नूर को ठंडा और सलामती की जगह बना दिया है। वही खुदा जिसने हजरत इब्राहिम के लिए आतिश नमरूद को बर्द और सलाम बना दिया था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बच्चे को सही व सालिम बाहर निकाल लिया। लेकिन फिर भी मां महफूज न थी, क्योंकि हुकूमत के कारंदे दाएं बाएं फिरते रहते और जुस्तजू में लगे रहते थे। किसी बड़े खतरे के लिए यही काफी था कि वो एक नौजायद बच्चे के रोने की आवाज सुन लेते। इस हालत में खुदा के एक इल्हाम ने मां के कल्ब को रोशन कर दिया। वो इल्हाम ऐसा था कि मां को बज़ाहिर एक खतरनाक काम पर आमादा कर रहा था, मगर फिर भी मां इस इरादे से अपने दिल में सुकून महसूस करती थी। हमने मूसा की मां की तरफ वही की कि उसे दूध पिला, और जब तुझे उसके बारे में कुछ खौफ पैदा हो तो उसे दरिया में डाल देना, और डरना नहीं और ना गमगीन होना, क्योंकि हम उसे तेरे पास लौटा देंगे और उसे रसूलों में से करार देंगे। उसने कहा, खुदा की तरफ से मुझ पर यह फर्ज आयद हुआ है, मैं उसे जरूर अंजाम दूंगी। उसने पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं इस इल्हाम को जरूर अमली जामा पहनाऊंगी और अपने नौजायदा बच्चे को दरियाए नील में डाल दूंगी। उसने एक मिस्री बढ़ई को तलाश किया। वो बढ़ई कप्ती और फिरौन की कौम में से था। उसने उस बढ़ई से दरखास्त की कि मेरे लिए एक छोटा सा संदूक बना दे। बढ़ई ने पूछा, जिस किस्म का संदूकचा तुम बनवाना चाहती हो, उसे किस काम में लाओगी? मूसा की मां, जो दरोग गोई की आदी ना थी, इस नाजुक मुकाम पर भी सच बोलने से बाज न रही। उसने कहा, मैं बनी इसराइल की एक औरत हूं, मेरा एक नौजायदा बच्चा लड़का है, मैं इस बच्चे को इस संदूक में छुपाना चाहती हूं। कप्ती बढ़ई ने अपने दिल में यह पुख्ता इरादा कर लिया कि जल्लादों को यह खबर पहुंचा देगा। वो तलाश करके उनके पास पहुंच गया, मगर जब वो उन्हें ये खबर सुनाने लगा तो उसके दिल पर ऐसी वहशत तारी हुई कि उसकी जुबान बंद हो गई। वो सिर्फ हाथों से इशारे करता था और चाहता था कि इन अलामतों से उन्हें अपना मतलब समझा दे। हुकूमत के कारिंदों ने उसकी हरकत देखकर यह समझा कि यह शख्स हमसे मजाक कर रहा है, इसलिए इसे मारा और बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो उस दफ्तर से बाहर निकला, उसके होशो हवास यकजा हो गए। वो फिर जल्लादों के पास गया और अपनी हरकत से फिर मार खाई। आखिर उसने ये समझा कि इस वाक़े में जरूर कोई इलाही राज पोशीदा है। चुनाचे उसने संदूक बना के हजरत मूसा की वालदा को दे दिया। दरिया की मौजें गहवारे से बेहतर, गालबन सुबह का वक्त था। अभी अहले मिस्र महवा ख्वाब थे। मशरिक से पूप हट रही थी। मां ने नौजायदा बच्चे और संदूक को दरियाए नील के किनारे लाई। बच्चे को आखिरी मर्तबा दूध पिलाया, फिर उसे मखसूस संदूक में रखा जिसमें यह खुसूसियत थी कि एक छोटी कश्ती की तरह पानी पर तैर सके। फिर उस संदूक को नील की मौजों के सुपुर्द कर दिया। नील की परशोर मौजों ने उस संदूक को जल्दी साहिल से दूर कर दिया। मां किनारे खड़ी देख रही थी। मुआन उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका दिल सीने से निकलकर मौजों के ऊपर तीरा है। इस दख्त अगर अल्ताफ इलाही इसके दिल को सुकून और करार न बख्शता तो यकीनन वो जोर जोर से रोने लगती और फिर सारा राज फाश हो जाता। किसी आदमी में ये कुदरत नहीं है कि इन हसास लम्हात में मां पर जो गुजर रही थी अल्फाज में इसका नक्शा खींच सके, मगर एक फारसी शायरा ने किसी हद तक इस मंजर को अपने फसीह और परज जज्बात अशार में मुजस्सम किया है। दिलों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। अब देखना चाहिए कि फिरौन के महल में क्या हो रहा था। रिवायात में मज़कूर है कि फिरौन की एक इकलौती बेटी थी। वो एक सख्त बीमारी से शदीद तकलीफ में थी। फिरौन ने इसका बहुत कुछ इलाज कराया मगर बेसूद। उसने काहिनों से पूछा। उन्होंने कहा, ए फिरौन, हम पेशन गोई करते हैं कि इस दरिया में से एक आदमी तेरे महल में दाखिल होगा। अगर इसके मन की राल इस बीमार के जिस्म पर मिली जाएगी तो उसे शिफा हो जाएगी। चुनाचे फिरौन और इसकी मलिका आसिया ऐसे वाक़े के इंतजार में थे कि नागां एक रोज उन्हें एक संदूक नजर आया जो मौजों की सतह पर तैर रहा था। फिरौन ने हुक्म दिया कि सरकारी मुलाजमीन
फौरन देखें कि ये संदूक कैसा है और उसे पानी में से निकाल ले, देखें कि इसमें क्या है। नौकरों ने वो अजीब संदूक फिरौन के सामने लाके रख दिया। किसी को इसका ढकना खोलने की हिम्मत न हुई। मुताबिक मशीयत इलाही ये लाजमी था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शरीफ आते हैं कि निजात के लिए संदूक का ढकना फिरौन ही के हाथ से खोला जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ। जिस वक्त फिरौन की मलका ने उस बच्चे को देखा तो उसे यूं महसूस हुआ कि एक बिजली चमकी है जिसने उसके दिल को मुनव्वर कर दिया है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।